خواتین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کا اگر نام لیا جائے تو سامنے بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، میرے ساتھ ان کی آپ کی ہو۔ بہرحال ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدر جو بھی ہوتا ہے اس کو تقریر کرتے مشکل ہی ہوتی ہے کہ سب باتیں کہی جا چکی ہو، لیکن پھر بھی ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سر سید نے خاص طور سے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کام کیا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حکومت یہاں پر تھی اس وقت وہ مغل سلطنت تھی، اور انگریزوں نے جو ہرا کر شکست دے کر حکومت حاصل کی تھی وہ مسلمانوں سے حاصل کی تھی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس قوم سے یا جس بادشاہ سے لڑ کے حکومت کی جاتی ہے تو اس سے دشمنی ہوتی ہے۔ یہ دشمنی دو طرفہ تھی، ایک تو انگریز اس بات کے مخالف تھے، اس لیے مسلمانوں نے مقابلہ کیا تھا، جہاد کیا تھا، ایک طرف تو انگریز ان کے مخالف تھے، دوسری طرف مسلمانوں کے اندر نفرت تھی انگریزوں سے۔ تو اس دو طرفہ کشمکش تھی، اور خاص طور سے مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ سائنس اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے علوم و فنون ہے وہ ہندوستان میں اس وقت موجود نہیں تھی۔ وہ ایک علیحدہ تاریخ ہے کہ ہم عربوں نے بغداد کے اندر کیا کیا اور اسپین میں کیا کیا، کہ ہندوستان کی حالت جو تھی اس وقت وہ زیادہ تسلی بخش نہیں تھی۔ تو اس لیے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں نے ظلم کیا ہے، پھانسیاں دی ہیں، تو لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارے بچے جو ہیں کرسچن ہو جائیں گے، ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی۔ اور لہٰذا یہاں تک تھا کہ کچھ لوگوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ انگریزی پڑھنا کفر ہے، کہ صاحب یہ فرنگیوں کی زبان ہے اور ہمیں انگریزی نہیں پڑھنی چاہیے۔ سائنٹفک سوسائٹی قائم کی، انگریزی تعلیم کے لیے کوشش کی۔ تو اصل میں ضرورت کی بات کی تھی کہ مسلمانوں انگریزوں کے درمیان جو نفرت اور جو مخاصمت تھی اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ انہوں نے سوچا تھا کہ انگریز یہاں پہ اتنی دور سے آ کے حکومت قائم کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ملٹری سپیریورٹی تھی، اور ملٹری سپیریورٹی جو تھی وہ سائنس کی وجہ سے تھی۔ ظاہر بات ہے جب بندوق آ گئی تو تلوار بیکار ہو گئی، اور جب توپ آ گئی تو پھر وہ کیا کہتے تلوار بھی بیکار ہو گئی، بندوق بھی بیکار ہو گئی، اور آج کل تو میزائل اور راکٹ کا زمانہ ہے۔ تو لہٰذا سر سید نے یہ بات سمجھ لی کہ اگر ہمیں اس قوم کو جو حالت تھی مسلمانوں کی اس وقت، اور ظاہر بات ہے کہ شکست خوردہ قوم جو ہوتی ہے اس کا جو حال ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا معاملہ، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں دربار سے وابستہ تھے، زمیندار تھے، اور یہ زیادہ پڑھائی لکھائی کا یہ سب بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں اردو کی خوبیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ زوال کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب بادشاہ بیٹھے ہوئے صرف یہ لکھ رہے ہیں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا بگڑ گیا، اور قلعہ معلیٰ میں جس وقت انگریز کیا کہتے ہیں یہاں حملہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کے اندر، تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں یہ ہو رہے تھے کہ ضعف اور غالب میں مقابلہ ہو رہا تھا، اس اور اچھا شاعری کو۔ تو ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر سید علیہ السلام کا جو بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک فکر پیدا کی کہ جدید علوم و فنون اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا جو ہے وہ کفر ہی نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے، آج کے زمانے میں بھی ہے۔ ایک بات میں آپ بتانا چاہتا ہوں، اردو کے بارے میں میرا علی گڑھ سے تعلق رہا، آج کل تو جیسے ابھی بتایا آپ سب لوگوں نے کہ وہ اردو علی گڑھ میں نظر نہیں آتی۔ اب حالت یہ ہے کہ پہلے زمانے میں علی گڑھ کا یونین کا صدر بھی رہا، تو اس زمانے میں جو لوگ بولتے تھے ہم سے پہلے وہاں پہ ایک سر احمد سعید بہت مشہور گزرے علی گڑھ کے پریزیڈنٹ۔ اب دیکھیے دو جملوں کے اندر کہ کیا زبان تھی اور کتنا فائدہ ہوا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ لڑکوں نے ظاہر بات ہے کچھ ڈسپلن ہوا، ذاکر صاحب وائس چانسلر تھے تو کچھ لڑکوں کو رسٹیکیشن ہو گیا، اور اس زمانے میں جیسے حالات تھے کہ یونین کی میٹنگ ہوئی اور سارے لوگ اکٹھے ہوئے، اور ذاکر صاحب خود یونین کے صدر رہ چکے تھے اپنے زمانے میں، وہ بھی آ گئے۔ اب جن لڑکوں کو رسٹیکیشن ہوا تھا تو جو صدر تھا اس نے دو جملے بولے صرف، اب آپ اس کو اندازہ لگائیے۔ انہوں نے کہا کہ ذاکر صاحب آپ تو استاد ہیں، استاد رہے ہیں، ٹیچر ہیں آپ۔ انہوں نے کہا استاد برہم ہوتا ہے بے رحم نہیں ہوتا، اور درگزر کرتا ہے دربدر نہیں کرتا۔ ٹیچر تھے آپ تو لڑکوں کا انویسٹیگیشن تھا، تو انہوں نے کہا ذاکر صاحب آپ تو استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اور استاد جو ہے وہ برہم ہوتا ہے بے رحم نہیں ہوتا، اور درگزر کرتا ہے دربدر نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ کہ لوگوں کو جو ہے سزائیں کم کر دیں گے۔ تو
कमाल था कि वो दिनों में जो बात कहते थे लोग शहरों में बात कह देते थे, तो ये बहरहाल ये अलीगढ़ में सिखाया जाता था। जाकिर साहब जब लाइफ मेंबर बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन के जो वहाँ गए, तो उन्होंने यूनियन की जो विजिटर बुक है उसमें लिखा था कि इस यूनियन में बोलने का सलीका सीखा और सुनने का भी। ये भारत अलीगढ़ का एक कमाल है। मैं उसके लिए ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, और वो ये कि कुछ ज़रूरतें हमारे शहर की हैं। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहीं पढ़ा तो मैंने यहाँ नहीं, मेरी तालीम या तो दिल्ली की है या फिर अलीगढ़ की है, लेकिन भारत बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ शहर में अगर जाके देखें तो आबादी जो हमारी है उसके एतबार से यहाँ पे मैं बिना तकल्लुफ़ कहता हूँ अपने लोगों की हालत बहुत है। तालीम की इतनी कमी बहुत कम शहरों में होगी, माली हालत से यहाँ खराबी नहीं ज़्यादा। अगर आप कहते साहब को माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तालीम का रुझान बड़ा था। अब मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे बहुत से कजिन पढ़े हैं मेरे, और यहाँ पे अभी क्या कहते हैं बताया, क्या कहते हैं जावेद इकबाल साहब ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, फैजान इंटर कॉलेज से पढ़कर लोग बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचे, बड़े बड़े फैजान से पढ़ने के बाद इंग्लैंड और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन आज जो फैजान का हाल है वो आप लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो हमने अपनी तालीमी इदारों का हासिल कर रखा है, तो कम से कम यहाँ शहर के लोगों को इसकी तवज्जो करनी चाहिए, तो कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। एक तहनीक की जरूरत है, ये कि फैजान जो है किसी एक शख्स की एक इदारा नहीं है, यहाँ पे नए इदारे भी कायम किए जाए, और फैजान जो फैजान यहाँ पर मौजूद है और भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, तो उनके हालात बेहतर बने और मेरे तालीम अच्छा हो, अपॉइंटमेंट पैसे लेके ना किए जाए वगैरह वगैरह। बहरहाल और एक चीज़ की तरफ और तवज्जो देना चाहता हूँ, और वो ये कि जैसे भी मौलाना साहब ने कहा कि मदरसा जहाँ पर देखा कुरान पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या कहते हैं लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा, और ये कहा कि साहब लड़कियाँ जो है जब पढ़ेंगी तो खराब हो जाएंगी। अब मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए मेरी पीएचडी इस्लामिक स्टडीज में दीनियात में इस्लामिक स्टडीज में प्रोफेसर हूँ, इंग्लिश में एमए कर रहा था, छोड़ के इंडियन ह्यूमैनिटीज में चला गया, और उसके बाद पीएचडी सुन्नी दीनियात में की और फिर इस्लामिक स्टडीज के हेड हो गया। दोबारा मेरा सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, जौहरी फार्म में, मैं वहाँ देखता हूँ कि लड़कियाँ, हमारी नौजवान लड़कियाँ जितने खराब लिबास पहन के जा रही है, तो खराब लिबास लड़के भी पहन। उसकी वजह क्या है? हमने दीन के दरवाजे, मस्जिद के दरवाजे, दीन के दरवाजे औरतों के लिए बंद कर दिए। बेसिक बात यह है कि हमारे यहाँ जो कुछ भी काम हो रहा है दीनी, वो मर्दों के लिए तो हो रहा है, मर्दों के लिए है, जमात में नहीं जाने देते। मैं साउथ अफ्रीका गया तो वहाँ मैंने देखा कुछ जो वहाँ पर लोगों ने ये किया था, अब हमारे यहाँ भी कुछ लोग करने लगे साहब, तो उन्होंने लड़कियों के लिए एक बाकायदा फ्लोर जो है कहते थे कि यहाँ पे लड़कियाँ नमाज पढ़ें, तो वहाँ कुछ लोगों ने बड़ी मुखालफत की। उन्होंने ऐसे बहस हुई, कहने लगे साहब आप समझते नहीं हैं, अब अगर मस्जिद में लड़कियाँ आएंगी तो बड़ी खराबियाँ पैदा होंगी। मैंने कहा साहब कॉलेज में लड़कियाँ जा रही हैं और वहाँ पर साउथ अफ्रीका में लेके दुकानों में बैठी हुई, मैंने कहा हर जगह बैठी हुई है, खराब होने के लिए उन्हें और जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ मस्जिद में। ये तो हमने मस्जिदों में बच्चों का नजर बहस है कि मस्जिदों के दरवाजे हम लोग के लिए बंद किए हैं, क्योंकि हमारे दारुल वगैरह है मर्दों के लिए, तो उसका नतीजा ये हो रहा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, दीनी तालीम में तो लड़कियाँ पीछे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खराबी ये आ रही है, हमारे यहाँ लड़के इतने नहीं पढ़ रहे जितनी हायर एजुकेशन लड़कियाँ हासिल कर रही हैं। इससे देखिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो ये रहा है कि चूंकि हमारे लिए ऐसा कहानी है कि दरवाजे बंद कर दिए गए उसके नौकरियों के, तो हम लोग सोचते हैं मैं नौकरी क्या करेंगे, तो या तो सर्विस क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी उनको प्रोफेसर है या कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो या तो सर्विस क्लास के बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, या जो यूनिवर्सिटियों से मुताल्लिक है, चाहे वो मैंने देखा यूनिवर्सिटियों में चपरासी भी जो है वो भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग पढ़ाई नहीं थे, और उसकी वजह पैसे कमाने थे। ये जो हमारा खास तौर से जो इलाका है वेस्टर्न यूपी, हम वेस्टर्न यूपी, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब को देख के इस मुल्क की गुर्बत का अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ तो ये हाल है कि आप देखेंगे कि अगर आपको रिक्शा चाहिए तो रिक्शा वाला जो है दिल्ली पी रहा होगा, कहता खाली नहीं है, और आप इलाहाबाद चले जाइए, वहाँ पे आपके पीछे 10 रिक्शे वाले घूमेंगे, इसलिए कि यहाँ पे इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, मानसिक तौर पर परेशान नहीं है ज़्यादा यहाँ पे लोग, इतना पैसे कमा लेते हैं। अब वो क्या है
कहते हैं कि यार तुम्हें पढ़ लिख के करना क्या है, घर का काम करना है, तो लिहाजा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हो, ये काम सीख लो, दुकान में बैठ जाओ और जो काम कर रहा हो उसमें लग जाओ। बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन करते हैं हमारे लोग। अगर आप देखेंगे ग्रेजुएशन बहुत कम तादाद है। 11वीं 12वीं बहुत पढ़ी, उसके बाद लड़के क्या करते हैं साहब 1 लाख का तो उन्होंने टेलीफोन खरीदा और मोटरसाइकिल खरीदी और पैसे जेब में और करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ अभी तक रिवाज नहीं है तो बच्चियों को नौकरी में फौरन डाला जाए। तो होता क्या है कि लड़की ने इंटर पास कर दिया। अब मतलब बिरादरी बात है हमारे यहाँ, अब मान लो बिरादरी के अंदर कोई लड़का अभी है नहीं ज़्यादा BA पास, तो लड़की को BA में दाखिला करा दिया। अब उसने BA कर लिया। आप देख लीजिए तमाम जो बड़े शहर हैं हमारे और जितने हमारे टाउन्स हैं उसके अंदर आप देख लीजिए हायर एजुकेशन के अंदर लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब एक लड़की जिसने PhD कर ली, अब वो 12वीं जमात पास करके तो शादी कैसे करने की होगा, उनके पास पैसा होने की उसका वो मेंटल लेवल ही नहीं मिलता, तो उससे खराबियां ये पैदा हो रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम अपने लड़कों को तालीम देना है कि हायर एजुकेशन में भी लड़कियां चाहे आप अपने काम में ही बैठे। आजकल का जमाना तो वो है, आप देखिए कि अगर आप हलवाई की दुकान भी करेंगे तो पढ़ लिख के करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है आजकल। तो ये मैं आप लोगों से कहूँगा कि बहुत जरूरत है इस बात की कि तहरीक चलाई जाए कि भाई ये साउथ में मालूम नहीं हुआ इंजीनियरिंग करना चाहिए, अब वो दुकान में बैठा हुआ तो ठीक है कि हमने इंजीनियरिंग की और बोलता ठीक है। तो लड़कों को हायर एजुकेशन की तरफ आया जाए, ग्रेजुएशन कम से कम करें, उससे ज़्यादा पढ़े, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरत थी। हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, वरना इससे बहुत खराबियाँ हो रही हैं। एक मैच मिलने मुश्किल हो रहे हैं। लड़कियाँ हायर एजुकेशन में ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं, शहरों के अंदर खासकर। गाँवों की बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन शहरों में टाउन्स के लिए तो उसके लिए ज़रूरत है हमें कि लड़कियाँ जैसे पढ़ रही हैं हमारे लड़के भी तालीम हासिल करें, नौकरी करें या ना करें। और दूसरी बात एक और है, जैसे अभी चालू देवपाल साहब ने कहा, कई दफ़ा हमें मौका मिला है सिलेक्शन कमेटी में बैठने का। देखिए एक जगह जब एक्सीडेंट्स आ जाती है ना, तो फिर कोई काम नहीं करता, सबको मजबूर होना पड़ता है कि नहीं भाई ये तो कैंडिडेट सबसे अच्छा है, उसके अंदर सब खत्म हो जाता है, उसमें बहुत मुश्किल है, फिर कम्युनलिज्म और ये सारी चीज़ें सब खत्म हो जाती है। तो लिहाजा जो अगर इस्माइल नगर का रहने वाला हूँ तो उसका एक बहुत मशहूर शेर है कि एक्सीलेंस कैसे हासिल करें। इस्माइल नगर का शेर है कि कोई पेशा हो ज़राअत या तिजारत या के इल्म, कोई पेशा हो ज़राअत या तिजारत या के इल्म, चाहिए इंसान को हासिल करे उसमें कमा। तो कोई भी काम करिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये अहमद हुसैन ये मेरे वालिद के दोस्त थे, फिरोज आर्टिस्ट दिल्ली में, तो अक्सर ही आते थे, नंगे पैर तो घूमते ही थे। और उस वक्त तक जाहिर बात है कोई इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं बनते। और अब आलम यह है कि अगर अहमद हुसैन को कागज के ऊपर यूं लाइनें भी खींच देता था तो उसके पैसे लग जाते हैं। साहब क्या ये हुसैन ने किया। असल चीज़ क्या है कि अगर आदमी अपनी काबिलियत कर दे तो फिर कोई किसी जगह में क्या कहते हैं आपको रोकने वाला नहीं। अरे दूसरी बातें कर रहे हैं, कुरान मजीद में कई जगह आता है अल्लाह ताला किसी को कोई देना चाहे दुनिया रोक नहीं सकती, और अल्लाह ताला रोकना चाहे कोई दे नहीं सकती। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने के लिए कोशिश आज नहीं सन 65 में की गई थी। एक वज़ीर तालीम थे मोहम्मद अली करीम भाई साहब, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा अलीगढ़ का नाम बदलो, यहाँ फिर 15 लोग रहते हैं। अब नतीजा क्या हुआ, जहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर खत्म जिस शख्स के साथ कराया था उसी को लाकर बादशाह बनाया, तैयबी को हटा दिया। उन्होंने 75% रिजर्वेशन कर दिया था लोकल स्टूडेंट्स का, उनको हटा दिया गया। नेहरू मर गए, शास्त्री जी आए, तो नतीजा क्या हुआ, तैयबी को एम्बेसडर बना के भेज दिया और अली अहमद साहब को हैदराबाद से लाके वाइस चांसलर बनाया। अली अहमद के हाथों से उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैरेक्टर बदला गया था। उस्मानिया आज भी वही है, लेकिन वो उस्मानिया वो नहीं जो पहले थे। वहाँ उस जमाने में उर्दू में तालीम दी जाती थी, तमाम सब्जेक्ट और मामूली नहीं था, स्टैंडर्ड सबसे हाई था। वजह क्या थी, निजाम के पास पैसा बहुत था, तो एक से बड़े काबिल आदमी को दुगनी तनख्वाह दे बुलाया करते थे। एक से काबिल आदमी जाता था, उर्दू में तालीम होती थी। आज उस्मानिया है, मैं कई दफ़ा गया हूँ, लेकिन ये उस्मानिया वो उस्मानिया नहीं का पहले थी। तो अलीगढ़ को उस्मानिया बनाने का सन 65 में काम शुरू किया गया था। मैं तो प्रेसिडेंट नहीं था, एक्स प्रेसिडेंट था। अल्लाह का शुक्र है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट था, तमाम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तमाम यूरोप और मुस्लिम कंट्री ढूंढ कर आया था। एजुकेशन शुरू हुआ, अली अहमद साहब आए, उन्होंने आते ही एडमिशन पॉलिसी बदली। दैट वाज द बिगिनिंग
कि ताकि अलीगढ़ का माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म किया जाए। हम लोगों को एजुकेशन करना पड़ा, हम जेल गए, रस्टिकेट हुए, निकाले गया, मैं ही नहीं, आरिफ मोहम्मद खान भी और ये सारे अफसर वासे सारे लोग उसे ये सब लोग जेल गए थे, रस्टिकेट हुए थे, निकाले गए थे। ऐसा उस वक्त, लेकिन अलीगढ़ अल्लाह का शुक्र है बच गया, वरना वहीं उसी वक्त खत्म कर देते वो। पहली दफा यूनिवर्सिटी की तारीख में गोली चली, हम लोग निकाल दिए गए, रस्टिकेट किए गए। और छागला साहब ने एजुकेशन में मेरे बारे में पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया मेरे मुखालिफ। खैर तो नतीजा क्या हुआ कि जब मरे मोहम्मद अली करीम भाई छागला, तो उनकी वसीयत ये निकली कि मुझे दफन न किया जाए, जलाया जाए। तो मैं देखता हूँ अलीगढ़ के जो दुश्मन थे तो दुनिया में ही जल के चले गए, और हम उसी यूनिवर्सिटी में दोबारा गए, उसी यूनिवर्सिटी में गए, वहीं तक की वहाँ पढ़ाया, वहाँ पढ़ाया भी, पढ़े भी वहाँ, पढ़ाया भी वहाँ, वहीं से पीएचडी। और फिर अल्लाह ताला ने जामिया अंदर में डीन ऑफ द फैकल्टी बना दिया, डीन स्टूडेंट वेलफेयर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, और इधर में प्रभाषक बना दिया। तो बाहर ये इसलिए कह रहा हूँ ये सब बातें, अगर अल्लाह ताला किसी को कोई चीज़ देना चाहे तो रोक नहीं सकता, और तो रोकना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। जो आजकल के हालात हैं, उसमें कुरान मजीद की एक आयत है, वो ये है कि शैतान तुमको अपने दोस्तों से डराता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम इनसे न डरो, मुझसे डरो। तो जैसे आपने बताया है कि असल बात यह है कि हौसले की है, डर खौफ इतनी बड़ी कौम को कोई कुछ नहीं कर सकता, सब फजूल बातें हैं। लेकिन ये है कि हमें डराया जा रहा है। मेरठ में कैसे कैसे किसान में बताया गया, ये बैठे हुए कोई सोच सकता है, मैं कह रहा हूँ ये बात, ये रिटायर हो गए इसलिए कह रहा हूँ। इनके बाद मुस्लिम लीग के सदर थे और जेल में थे। कोई सोच सकता है कि जो आगे मुस्लिम लीग का सदर हो और जेल में हो, तो राइट में उसका बेटा मेजर जनरल, तो ये अल्लाह ताला किसी को कोई चीज देना, ये सब फजूल बात है। तो लिहाजा हमें ईमानदारी से बिल्कुल, देखिए मुसलमान इस मुल्क में रहेंगे तो जाहिर बात है मुल्क तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, मुसलमान तरक्की करेंगे, हिंदू मुस्लिम तरक्की करेंगे। तो बस मैं आखिर में एक बात करूँ, जो ये जहन है ना बेवकूफ़ी का, कहाँ तक हिमाकत होती है कि एक दफ़ा हुआ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो ब्लैक आउट होता था। मतलब ये था कि कोई लाइट नहीं जलनी चाहिए ताकि ऊपर जहाज़ों को ये ना मालूम हो कि यहाँ पे कोई आबादी है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। और कहते थे कि घर में भी लाइट ऐसी जलाई जाए, खिड़की बंद कर दीजिए, बाहर लाइट नहीं जानी चाहिए। तो उस जमाने प्रताप अखबार बहुत किसी की बातें लिखता था, उसने लिख दिया कि साहब अलीगढ़ के लड़के जब ब्लैक आउट होता है तो ये अपने हॉस्टल की छतों पर जाके पाकिस्तान के जहाज़ों को सिग्नल देते हैं, मतलब टॉर्च दिखाते हैं। मुझसे उन्होंने लिख दिया सीआईडी रिपोर्ट नहीं आती, सीआईडी की ऐसी, जैसे मैंने बताया आपको कि उस जमाने में पूरे यूरोप में गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था, वापसी पाकिस्तान में गया, मैं उन्होंने कहते वजीर मसाइल पाकिस्तान के छापे में जाता लोकसभा समझे। तो ऐसा ही वो सीआईडी ने लिख दिया कि हाँ साहब अलीगढ़ के लड़के जो हैं वो टॉर्च दिखा रहे हैं। मुझसे मजिस्ट्रेट ने कहा साहब देखिए बड़ी गलत बात है, ये अलीगढ़ के लड़के जो हैं बताइए ब्लैक आउट होता है, जंग का जमाना है, और ये साहब उसके छतों पे चढ़ के अपने पाकिस्तान को सिग्नल देते हैं। मैंने कहा सर एक बात बताइए, टॉर्च दिखाने के मायने क्या है सिग्नल देने के? मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बम गिरा तो सिग्नल तो यही तो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे जल्दी से बम गिराइए आप। तो मैंने कहा अगर वहाँ पे बम गिरेगा तो कोई थोड़ी देर में पसीने में मकाने से छोड़ दो या राम प्रकाश का मकाने क्या कहते हैं तोड़ दो। मैंने कहा आपकी समझ में आता है कि अलीगढ़ के लड़कों को खुदकशी करने का कोई दूसरा तरीका नहीं मालूम है, पाकिस्तान के जहाज़ों पे करने के हमारे हॉस्टलों का मौका लगा, तब उनकी समझ में आया। तो ये जब ऐसे बेवकूफ़ी की जब अंतभक्त हो जाता है आदमी, तो समझ जो है खत्म हो जाती है। तो बहरहाल आप लोग इतनी देर से बातें सुन रहे हैं, अलीगढ़ वाले मशहूर हैं जुमलेबाजी के अंदर में। तो मैं एक लेक्चर देने के लिए इंग्लिश मीडियम में कहा 10 कॉलेज में जाऊँ, तो मुझे सोचना पड़ा कि सवाब ज़्यादा होगा या ज़्यादा इसलिए कि आप दीनियात पढ़ाने जाए और वो भी लड़कियों को। तो खैर मैंने कहा अल्लाह का नाम है लेकिन पढ़ाया मैं। तो मैं उस जमाने में देखता था कि वहाँ पे हमारे अलीगढ़ में सलाम का बड़ा रिवाज था, अब तो कम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सलाम इसलिए नहीं कहते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है कब सलाम कहना है तो वालेकुम सलाम, तो इतना हो गया सलाम वालेकुम अब बहुत कम हो गया। तो जब मैं वीमेंस कॉलेज में गया तो वहाँ लड़कियाँ के अंदर ही आदाब, तो मैंने कहा भाई ये तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इदारा है, तो तुम लोग ये आदाब को कहते हो, सब जगह सलाम करने की सब यहाँ की ट्रेडिशन तो यही है। तो मैंने उनसे कहा
आप तो ट्रेडिशन तो बनती है, वो तो बनाने से बनती है। अच्छा, फर्स्ट ईयर के अंदर कंपलसरी होती है और इंग्लिश मीडियम में जाहिर बात है बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स आते हैं मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। तो मैंने कहा भाई तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो और अभी तुम्हें यहाँ बहुत सालों में रहना है, तुम्हें एक काम ये करो, तुम लोग सलाम कहना शुरू करो। तो इंशाल्लाह कुछ सालों बाद देखो कि ये ट्रेडिशन बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बाजू में बड़ी खुशी होती है कि लड़कियाँ वहाँ पे भी सलाम करने लगी, वरना आदाब करती थी। तो मेरे पास जमाने मोपेट थी, तो मैं जा रहा था कॉलेज में, तो सामने हॉस्टल था। अब लड़कियां तो लड़कियां ही बाहर स्टूडेंट, किसी ने देखा मैं जा रहा हूँ, तो अब लड़की जोर से बोली हाय, दूसरी लड़की बोली वालेकुम हाय। ऐसे लतीफा ये है कि क्या कहते हैं, हमारे सीनियर थे, तो वो जा रहे थे साइकिल पे। अब तो लड़कों के पास मोटरसाइकिल है, पहले कहाँ होती थी मोटरसाइकिल। अच्छा ये बता रहे हैं 150 आते थे, हमारे जमाने में तो 100 रुपये आते थे, नहीं आते, उसमें सब कुछ हो जाता था। तो बाहर तो वो जा रहे थे, वो अलीगढ़ जमाने में कंपनी चैटी कंपनी बहुत चलता था। एक लड़की थी जो बधाई कंपनी से आती थी, और उधर से एक साहब आ रहे थे, वो कुछ कह रहे थे, गाड़ी वाड़ी की उनके, ऐसे बड़े स्मार्ट आदमी, तो इत्तेफाक से साइकिल टकरा गई। तो वो लड़की गुस्से में बोली नाम लेके कि शमसी साहब आपको शर्म नहीं आती, आपको रोक लेना चाहिए था, आपकी दाढ़ी है। तो कहने लगे मोहतरमा दाढ़ी है तो ब्रेक थोड़ी है। तो अलीगढ़ महाराज है आर्मी, ये हुकूमत आपको पता है 1981 के अंदर पूरे इत्तेफाक लड़ने के बाद गवर्नमेंट ने मान लिया था कि ये इदारा जो है माइनॉरिटी एजुकेशन, इस गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया है कि ये गलत है, इदारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये अलीगढ़ को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे कि इसलिए अलीगढ़ की जो बुनियाद है ससैद ने बड़े खुलूस पे रखी है। इनको जाती तौर पे कुछ नहीं मिल रहा था, उनके फतवे दिए जा रहे थे। एक साहब मौलवी साहब गए मक्के मदीने से फतवा लेकर आए उसके लिए, तो सर सैयद ने कहा कि हमारा कुफ्र भी कैसा है कि लोगों को मक्के मदीने जाके फतवा लेना पड़ता है कि सर सैयद काफी है। तो सर सैयद ने जो खुलूस के साथ जो चीज़ खुलूस के साथ होती है ख़त्म नहीं होती। देखिए मुझे कई लोगों ने बताया, हमारे सामने मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये ऑक्सफोर्ड में ही पढ़े हुए थे और अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, और अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट अंसारी साहब वो भी बता रहे थे। मैं दिल्ली में पढ़ता था जिस स्कूल में, कभी गुजरता हूँ फतेहपुरी के सामने से लगता है कहाँ यहाँ, लेकिन अलीगढ़ में अगर आप में से कुछ लोग होंगे स्टेशन पे पहुँच के मालूम होता है जैसे हम घर में आते हैं। तो वो जो होम कमिंग का एहसास है जो हॉस्टल में रहने के साथ आदमियों को मिलता है अलीगढ़ का, वो सर सैयद के खुलूस की वजह से है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसको कोई बात नहीं कर सकेगा। अल्लाह मैं आखिर में क्या कहते हैं जिगर मुरादाबादी का शेर है उसको अपनी बात खत्म करता हूँ। वो फरमाते हैं कि ज़ाहिर खुलूस और मोहब्बत के हाथ साथे जहाँ, मुझे तो क्या मेरे नक्शे कदम मिटा नहीं सके।